عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اتراکھنڈ میں وشو ہندو پریشد سمیت کئی رائٹ ونگ تنظیموں نے چرچ میں توڑ پھوڑ کی اور اس خبر کو دبا دی گئی۔ وہیں پر سلطان شاہی میں کس طرح اشرار نے 3 مسلم نوجوانوں پر حملہ کیا ہے۔ خبر آ رہی ہے کہ آسام کے درنگ میں جو جانی نقصان ہوا ہے اس کی تحقیقی رپورٹ سامنے لائی جانے کی کوشش ہوئی ہے، اور بیرون ملک ڈرگس کو بھیجنے کے اس میں سابق پولیس افسر سمیت کچھ لوگوں کی گرفتاری کی خبر بنگلورو سے آ رہی ہے۔ پرینکا گاندھی کے معاملے میں کس طرح کی اس وقت جو ہے شکایتیں درج ہوئی ہیں۔ تریپورہ سے بی جے پی رکن اسمبلی پارٹی کو جھٹکا دینے کے لیے کس طرح تیار ہے۔ ممتا بنرجی نے کیا نشانہ سادھا ہے۔ اسرائیلی فورسز فلسطینیوں کے 11,900 گھر مسمار کر چکنے کی جو تازہ رپورٹ آئی ہے، اور میں آپ کو اس مسلم نوجوان کی بات بھی کہوں گا جس کو اسرو میں منتخب کیا گیا ہے، اور کچھ افغانستان کی بھی خبریں ہیں۔ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اور نیچے تفصیلات ہیں۔ ناظرین گرامی، بعض خبریں آپ کو پہنچاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں میں، اور اس میں سی خبر یہ اس طرح کی ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ایک طالب علم محمد کاشف کو اسرو میں منتخب کیا گیا ہے۔ کاشف نے ملک بھر میں قومی سطح کے اس سخت امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ کاشف کو اسرو میں بطور سائنسدان منتخب کیا گیا، اور کاشف نے اسرو میں جانے کے اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے سخت محنت بھی کی ہے۔ کاشف اسرو میں سائنسدان بن کر ملک کی خدمات کرنا چاہتا ہے۔ کاشف کے علاوہ اسرو میں اس پوسٹ میں جامعہ کے بہت سے بچوں کا بھی انتخاب کیا گیا۔ اعظم گڑھ سے تعلق رکھنے والی رہائشی محمد کاشف نے ملک میں سائنسدان کے عہدے کے امتحان میں انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ واقعی میں بہت بڑی کامیابی ہے ناظرین گرامی، اور اس کامیابی پر آپ کو بھی خوشی محسوس کی جانی چاہیے۔ کاشف نے انٹرمیڈیٹ تک کی تعلیم اعظم گڑھ سے مکمل کی۔ کاشف کی تعلیم اعظم گڑھ کی جیوتی نکیتن اسکول سے مکمل ہوئی۔ کاشف مزید تعلیم کے لیے دہلی چلا گیا، اور 2014 میں جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کے انجینئرنگ کالج میں داخلہ لیا۔ کاشف نے 2019 میں جامعہ سے میکینیکل انجینئرنگ میں ہی ٹیک مکمل کیا، اور پھر اسرو جانے کی تیاری شروع کر دی۔ جنوری 2020 میں کاشف نے اسرو میں سائنسدان کے عہدے کے لیے امتحان دیا تھا۔ خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی جب کاشف نے اپنی محنت سے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اسرو میں کاشف کے انتخاب پر کاشف کے والدین اور خاندان کے دیگر افراد کو مبارکباد کی پیش کی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، کاشف کے علاوہ ان کے ہم جماعت اریب احمد اور امیت کمار بھردواج کو بھی انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن میں اسی عہدے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اریب احمد مظفر نگر کے کٹولی کا رہائشی ہے۔ والد قاضی مہتاب ضیاء اور ماں نسرین کے ذہین بیٹے اریب نے اپنی تعلیم گولڈن ہارٹ اکیڈمی مظفر نگر سے حاصل کی۔ اس کے بعد اریب انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے جامعہ آیا۔ اریب نے اسرو میں سائنسدان کے عہدے کے لیے امتحان دیا، جس میں اس کا بھی انتخاب ہوا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے 2 نوجوان، اور اس کے علاوہ وہ بھی نوجوان جو اس وقت امیت کمار بھردواج، سب کے سب مبارکبادی کی مستحق ہیں۔ بالخصوص سیدھی بات ہماری ان 2 مسلم نوجوانوں کے خدمت میں جو ہے اس وقت جو ہے مبارکبادی پیش کرتا ہے کہ انہیں بڑی محنت سے جو ہے اس وقت ایسے امتحان میں، جو امتحان بہت ہی مشکل مانا جاتا ہے، اور سائنسدان کے امتحان میں ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کس طرح کے سوالات ہوں گے۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کوئی معمولی آرگنائزیشن نہیں ہے، وہ آرگنائزیشن پورے جو ہے بھارت کی رہنمائی کرتی ہے۔ وہاں پر جو ہے مسلم طالب علموں کا انتخاب ہونا اور اس طرح کے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کرنا واقعی میں جو ہے پورے بھارت کے مسلمانوں کے لیے خوشی کی بات ہے، اور آپ تمام لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی خدمت میں ضرور جو ہے مبارکبادی پیش کریں، اور ان کے مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کریں کہ وہ آگے جا کر کے اپنے ملک و ملت اور قوم کا نام روشن کر سکیں۔
बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं सुल्तान शाही का। एक तरफ खबरें ये हैं, दूसरी जानिब मुस्लिम नौजवानों पर हमले की, छेड़खानी की और ईसाई गिरजाघरों पर हमले की हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से लगातार ये सिलसिला जारी है। ये खबरें दबा दी जाती हैं, जबकि हकीकत ये है कि जो ये खबरें पुरानी होकर के फिर सुर्खियाँ बटोरती हैं। ये खबर जो इस वक्त सुल्तान शाही की है वो एक दिन पहले की है। पुराने शहर सुल्तान शाही इलाके में उस वक्त हल्की कशीदगी पैदा हो गई जब मामूली बात को फ़िरक़ावाराना रंग देते हुए अशरार ने पुरअमन फ़िज़ा को मुकद्दर करने की कोशिश की और 3 मुस्लिम नौजवानों को हमला करते हुए ज़ख्मी कर दिया। एक नौजवान शदीद ज़ख्मी बताया गया है। तफसीलात के मुताबिक सुल्तान शाही के साकिन नूर मोहम्मद अपने 2 साथियों नवाज़ और फयाज़ के हमरा मोटरसाइकिल पर उस रास्ते से गुजर रहे थे कि वाल्मीकि नगर के करीब हालत नशा में मौजूद अशरार ने उन्हें रोक कर गाली गलोच की, उन्हें शदीद ज़दोकोब किया और कहा गया है कि अशरार ने लाठियों और पत्थरों से भी हमला किया। करीब से गुजरने वाली कुछ ख़वातीन को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई, ताहम ख़वातीन को कोई गज़ंद नहीं पहुंची। ज़ख्मी नौजवानों को इलाज के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया। हमले के बाद अशरार के मज़ीद साथी भी वहाँ जमा हो गए थे। इस वाक़े के बाद सारे इलाके में खौफ व हरास का माहौल पैदा हो गया और मकामी ख़वातीन मदद के लिए चीखो पुकार करने लगी। वाक़े की इत्तला मिलती ही ACP संतोष नगर मिस्टर शिवराम शर्मा, APC मीर चौक बी आनंद, इंस्पेक्टर भवानी नगर और दूसरे पुलिस अहदेदार वहाँ पहुँच गए और हालात को जो है काबू में करने की कोशिश की। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नाज़रीन गिरामी कि किस तरह कुछ मुस्लिम नौजवानों की ऐसे इलाके से जो अक्सरियती इलाका माना जाता है वहाँ से गुजरने के बाद ज़बरदस्ती छेड़खानी करते हैं नशे की हालत में और फिर जो है उनको ज़दोकोब करते हैं। इसमें बहुत सारे नौजवानों के ज़ख्मी होने और एक शख्स के बहुत ही ज़्यादा हालत नाजुक होने की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन मीडिया इस पर कोई बहस नहीं कर रहा। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी ये खबर भी छुपा दी गई जो उत्तराखंड से आ रही है। जी हाँ, उत्तराखंड के रोडकी में इतवार को मुबैना तौर पर मकामी राइट विंग तंजीमों से यानी हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से वाबस्ता लगभग 200 नामालूम मर्दों और औरतों ने एक चर्च में तोड़फोड़ कर दी। इस वाक़े में सुबह की इबादत के लिए जमा कई लोग ज़ख्मी हो गए। चर्च के पादरी की बीवी परयू साधना लांसे की जानिब से दर्ज FIR के मुताबिक मकामी विश्व हिंदू परिषद VHP, बजरंग दल और BJP की यूथ विंग से वाबस्ता 200 से ज़्यादा मर्द और औरत चर्च में दाखिल हो गए थे और तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी थी। इस दौरान चर्च जाने वाले लोगों की पिटाई भी कर दी गई। सुबह लगभग 10 बजे लोहे की छड़ों से लेस भीड़ ने चर्च में कुर्सी, मेज़, मौसीकी के आलात, तस्वीरों को तबाह कर दिया गया और दीवार से बात करते हुए लांसे ने बताया कि हमलावरों के रास्ते में जो भी चीज़ें आईं उन्होंने उसे तबाह बर्बाद कर दिया और तोड़ दिया। लांसे ने भी कहा कि वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे बुलंद करते हुए मुश्तिल हुजूम इमारत की पहली मंजिल पर वाक़ चर्च में घुसी। उन्होंने हमारे रज़ाकारों को पीटना शुरू किया। खातून हमलावर ने हमारे ख़वातीन साथियों की पिटाई की। ये तोड़फोड़ लगभग 40 मिनट तक चली। इस दौरान चर्च के एक रज़ाकार की सर में शदीद चोट लगी। उन्हें देहरादून के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वैकैफ नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं क्या कुछ हो रहा है। हिंदुत्व के ये गुंडे दहशतगर्द अब लगातार कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। यानी इनके सामने अब भारत का आइन, यहाँ के कानून, यहाँ की अदालत, यहाँ का इंतज़ामिया, यहाँ की पुलिस कोई माना नहीं रखती। ये जब चाहे किसी को पीट देते हैं और किसी भी धर्म के इबादत गाने में घुस करके जो है अपनी दहशतगर्दी की इंतहा कर देते हैं। अफसोस का मकाम ये है कि इस तरह का सपोर्ट करने वाले हुक्मरान पार्टी के लीडरान होते हैं जो इनको उकसाने की कोशिश करते हैं और इस खबरें हमने लगातार देखा भी है कि किस तरह उनको उकसाया जाता है। नाज़रीन गिरामी, आसाम की बात कर लेते हैं जहां की एक तहकीकी रिपोर्ट सामने आई है। आसाम के दरंग ज़िले में पुलिस ने बगैर किसी वजह के हमले किए और बेघर अफराद के ख़िलाफ़ गैर ज़रूरी तौर पर अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल किया, जिससे 2 अफराद हलाक और कई ज़ख्मी हुए। APCR एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की एक तहकीकी टीम ने हाल ही में आसाम की ज़िला दरंग के धूलपुर इलाके का दौरा किया था, जिनकी तस्वीर इस वक्त आप यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ गुज़िश्ता हफ्ते जबरी बेदखली और पुलिस की बर्बरियत के बदकिस्मत वाक़यात देखे गए। समाजी कारकुनों, सहाफ़ियों और मुहक्किकीन पर मुश्तमिल टीम ने ज़मीन पर मौजूद हक़ाइक़ को यकजा करते हुए आवाम के सामने इस बात को लाने की कोशिश की है। टीम की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और इंतज़ामिया ने अपनी तरफ एक बड़े हुजूम को लाठियों पत्थरों से हमला करने का जिम्मेदार ठहराया। उनका मानना था कि बेदखली के मकाम पर मुज़ाकरात के बाद रिहायशियों को बहाली और दीगर मुतबादिल इक़दामात की यकीन दहानी कराई गई। बादअज़ा उन्होंने इलाका छोड़ने से पहले अपना सामान जमा करने के लिए मुंतशिर होना शुरू कर दिया। अचानक 100 से ज़ायद अफराद ने पुलिस पर लाठियों और पत्थरों से हमला शुरू कर दिया। इनको मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने सबसे पहले आंसू गैस की गोले और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया। जब वो नहीं रुके तो पुलिस ने अपने दिफा में असल गोलियों से फायरिंग शुरू कर दी। ये पुलिस का बयान है। ताहम रिहायशियों की अक्सरियत ने हुकूमत के इस दावे को गलत ठहराया।
कि उन्हें मुनासिब वार्निंग दी गई है। उनका कहना था कि बेदखली के नोटिस सरकारी मुहिम शुरू होने से 24 घंटे भी कम वक्त में पेश किए गए। उनका यह भी कहना था कि अगरचे लोग वहां से जाने पर राजी हुए और जो अपने घर खाली कर रहे थे, बावजूद उसके पुलिस ने उन लोगों पर हमला किया। हलाक होने वाले मोइनुल हक और शेख फरीद के अहलखाना के साथ साथ जख्मी होने वाले अफराद ने बताया कि पुलिस एहलकारों ने बिला इश्तियाल उन पर हमला शुरू कर दिया था। तहकीकी टीम ने पाया कि ज़िला इंतज़ामिया रियासती हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे ने अब तक मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात नहीं की और ना ही उनको तसल्ली दी गई और ना ही उनके गम में शरीक हुआ गया और तो और किसी मुनासिब मुआवजे का ऐलान भी नहीं किया गया। APCR ने कहा कि बेदखली की मुहिम को हेमंत बिस्वा शर्मा की हुकूमत के तहत आसाम में मुस्लिम अक़लियत को निशाना बनाने की कोशिशों के तनाज़ुर में देखने की ज़रूरत है। ये उस हकीकत से ज़ाहिर होता है कि आसाम में 2021 के असम्बली इंतखाबात से कबल शर्मा ने रियासत के बंगला बोलने वाले मुसलमानों को अलग करने का एक दानिस्ता अमल शुरू कर दिया है। तो नाज़रीन गिरामी, ये जो ज़मीनी हक़ाइक़ जमा करती है APCR, इसकी रिपोर्ट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह मुनज़्ज़म अंदाज में बंगला बोलने वाले जो है मुसलमानों पर हमला किया गया था। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ और ख़बर है प्रियंका गांधी समेत 11 अफराद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं इस वक्त यूपी पुलिस की जानिब से। और इसमें जो है दीपेंद्र सिंह हड्डा और अजय कुमार लल्लू, इसके अलावा और भी 11 अफराद हैं। ख्याल रहे कि प्रियंका गांधी को लखीमपुर जाते वक्त सीतापुर में हिरासत में लिया गया था। उन्हें यहाँ APC गेस्ट हाउस में भी रखा गया है और इस हिरासत में, जहाँ से उनकी कई वीडियोस निकल करके सामने आ रही हैं और लगातार जुल्म सितम के खिलाफ जो है वो आवाज़ भी उठा रही हैं। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब BJP रुकन असम्बली पार्टी को झटका देने के लिए तैयार हो चुकी है त्रिपुरा में और जल्द तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की बात कही जा रही है। त्रिपुरा में BJP रुकन असम्बली आशीष दास ने भवानीपुर में ममता बनर्जी की शानदार जीत के एक दिन बाद कहा कि मुल्क के अवाम ममता बनर्जी को मुल्क के अगले वज़ीर आज़म के तौर पर देखना चाहते हैं। इंदिरा गांधी के बाद ममता बनर्जी मुल्क की सबसे मकबूल खातून लीडर हैं। आशीष के इस बयान से वाज़ेह हो गया है कि वह BJP छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आशीष दास ने BJP पर तंज करते हुए भी कहा कि मुल्क के अवाम BJP को समझ चुके हैं और उसका चेहरा बेनकाब हो चुका है। उन्होंने BJP में शमूलियत पर यानी कफ़ारा अदा करने का फ़ैसला किया है, कहते हुए उसके बाद 7 अक्टूबर को तृणमूल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे, इस बात का ऐलान किया है। यानी कि त्रिपुरा में भी इस वक्त लगातार TMC जो है अपना मैदान बनाने लगी है। ये महसूस हो सकता है इस तरह के बयानात में। यही वजह है नाज़रीन गिरामी की कल ममता बनर्जी ने योगी हुकूमत को निशाना बनाया था और कहा कि यूपी में राम राज नहीं बल्कि किलिंग राज चल रहा है, यानी कातिलों का राज चल रहा है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त अपोजिशन के सिलसिले में कि अपोजिशन का अगर इत्तेहाद होता है तो उसमें वज़ीर आज़म का चेहरा कौन सा होगा। महसूस किया जा रहा है कि इस वक्त जो है ममता बनर्जी उसी की तैयारियों में लगी हुई हैं। एक तो मगरबी बंगाल के तमाम अपोजिशन लीडरान को जो है अपने पार्टी में शामिल करने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, तो वहीं पर दीगर रियासतों में भी लगातार ममता बनर्जी आगे बढ़ने की और अपनी साख बिठाने की कोशिश हो रही है। यानी मतलब ये है कि वो अपने आप को या इनके पार्टी के लीडरान ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले MP यानी पार्लियामेंट इलेक्शंस में यानी आम इंतखाबात में वज़ीर आज़म का चेहरा अपोजिशन का अगर कोई हो सकता है तो वो ममता बनर्जी का हो सकता है। शायद इस तरह का पैगाम पूरे भारत में देने की कोशिश कर रहे हैं। बहरकैफ देखा जाएगा आगे। आइए नाज़रीन गिरामी, जालिम इसराइली फोर्सेस की जुल्म सितम की बात करते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किस तरह इसराइली फोर्सेस यहाँ की फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़ा करती है और किस तरह जो है उनके घरों को मिसमार करती है नाजायज़ नोटिस भेज करके। अब जो ताज़ा ख़बर आ रही है, इसराइली फोर्सेस 1967 से लेकर अब तक मकबूजा दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे और मशरक़ी बैतुल मक़दिस में फ़िलिस्तीनियों के 11,900 घरों को मिसमार और 73,000 अफराद को बेघर कर चुकी है। फ़िलिस्तीनी सिविल सोसाइटी तंजीम ने कहा कि लैंड रिसर्च मरकज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली जालिम कब्ज़े के आगाज़ यानी 1967 से लेकर अब तक दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे और मशरक़ी बैतुल मक़दिस में फ़िलिस्तीनियों के 11,900 घर मिसमार किए जा चुके हैं। मिसमार किए गए घरों में से 7,440 मशरक़ी बैतुल मक़दिस से हैं और इस इन्हिदाम के नतीजे में 47,220 मशरक़ी बैतुल मक़दिस के रिहायशियों समेत कुल 73,000 फ़िलिस्तीनी बेघर हुए हैं। कब्ज़े के बाद से इसराइल ने दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे और मशरक़ी बैतुल मक़दिस में गैरकानूनी यहूदी रिहायशी बस्तियाँ कायम कर चुकी हैं और यहाँ मुकीम फ़िलिस्तीनियों के लिए तरह तरह की मुश्किलात पैदा किया जा रहा है। वाज़ेह है कि इसराइली इंतज़ामिया दरिया उर्दन के मगरबी किनारे की सी जोन और मशरक़ी बैतुल मक़दिस में बिला इजाज़त तामीर को
وجہ دکھا کر وقتاً فوقتاً فلسطینیوں کے گھر منہدم کرتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، جس کی زمین ہے، جن کا ملک ہے، وہاں پر جو ظالم یہودی، قابض یہودی، دہشت گرد یہودی جو قابض ہو چکے ہیں، کس طرح فلسطینیوں کے ساتھ ظلم و ستم کو اپنایا جا رہا ہے، اس خبر کی رپورٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے دو خبریں افغانستان سے بھی آئی ہوئی ہیں، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کے پھر میں آپ سے اجازت لینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے خواتین کو جو محکمہ پاسپورٹ سے وابستہ تھیں، ان کو ملازمت پر واپس آنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، وزارت داخلہ کے ترجمان سعید خوستی نے کہا ہے کہ تمام خواتین وزارت داخلہ میں اپنی ملازمتوں پر واپس آ کر کام شروع کر دیں۔ اس اعلان کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خواتین کے سلسلے میں طالبان کو لے کر کے جو ڈیوٹی اور جابز اور تعلیم کو لے کر کے لگاتار ان پر تنقید کر رہے ہیں، اس حکم نے تازہ اور واضح بیان، تازہ پیغام پوری دنیا کو بھیجا ہے کہ وزارت داخلہ میں جتنی بھی خواتین ملازمت تھی ان کو واپس بلا لیا جائے گا اور وہ کام کرنا شروع کر دیں گے، بالخصوص محکمہ پاسپورٹ اور دیگر جو وزارت داخلہ کے ماتحت میں محکمے آتے ہیں۔ وہیں پر ناظرین گرامی، اشرف غنی جو بھگوڑا ہے، اس سے پہلے جو افغانستان کا صدر تھا، اس کے سلسلے میں انہی کے دور حکومت میں جو امریکہ کی سفیر تھی عادلہ راز نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ اشرف غنی نے کرپشن کی حدیں پار کی۔ اس کا پہلے سے ہی بھاگنے کا ارادہ تھا۔ مجھے 8 اگست کو اس کے کابل سے بھاگ نکلنے کی تیاری کی اطلاع ملی تھی۔ یہ جو ہے ایک انٹرویو کے درمیان میں جو امریکہ میں سفیر ہیں غنی حکومت کی جانب سے، عادلہ راز نے جو ہے صاف طور میڈیا کو بتایا کہ اشرف غنی بھگوڑا ہے، وہ اور کرپشن کر کے بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سابقہ حکومت میں کس طرح بدعنوانی عام تھی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے سامنے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،